नमस्कार, प्राइम नून देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। हेडलाइंस के बाद अब सीधे रुक करेंगे खबरों का। शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ, जहां आईआईटी जम्मू में नॉर्थ टेक सिंपोजियम यानी कि संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एमवीएस कुमार ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर उत्तरी कमान के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी मौजूद रहे। इसमें आईआईटी जम्मू के कर्मचारी और छात्र भी भाग ले रहे हैं। इस संगोष्ठी के लिए 180 औद्योगिक भागीदारों ने पंजीकरण कराया है। इस मौके पर उप सेना प्रमुख ने कहा कि टेक्नोलॉजी का महत्व बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी अब विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता है। इस पहल का उद्देश्य नए स्टार्टअप के लिए एक मंच प्रदान करना है। Institutions like IIT Jammu are hubs of innovation where the brightest young minds are nurtured and guided to push the boundaries of what is possible. The main objective of the Northern Tech Symposium 2023 is to augment technological knowledge base of participants and acquaint them with state-of-the-art technologies and commercially off-the-shelf solutions, or the COTS as we say, available in the defense sector. It is with the underlying aim to create awareness of contemporary technologies and hardware solutions available with Indian defense manufacturers under Atmanirbharata to meet ever-evolving dynamics in Northern Command with indigenous, innovative and future-proof technologies. The armed forces, in keeping with the initiatives of the Government of India, are committed to provide the necessary push and impetus to our defense manufacturers. The fact that India's defense exports have risen to an all-time high and that foreign governments are keen to procuring Indian weapons and systems amply establishes the potential that indigenous defense sector holds. The event is expected to enable greater engagements with Indian private sector, R&D organizations, giving an impetus to Atmanirbhar Bharat campaign. The concept of integrated warfare, where the Army, Navy, Air Force and other branches of the armed forces work seamlessly together, is essential in today's complex security environment. We must leverage technology to enhance interoperability and coordination among our forces. Furthermore, the defense sector is not immune to the broader challenges of sustainability and environmental impact. We must seek solutions that not only bolster our national security but also mitigate the environmental footprint of our operations. Use of technology must be made in an environmentally conscious manner. Let us embrace this opportunity to push the boundaries of our collective knowledge and pave a way for a safer, more secure world. उत्तरी कमान में जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जम्मू में न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए कहा कि तकनीक में उन्नति जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान हमारे खिलाफ ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। इस तरह की संगोष्ठी अधिक प्रभावशाली काउंटर ड्रोन तकनीक में मदद करेगी। जनरल ऑफिसर कमांडिंग नॉर्दर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ हैं। सर, आज जो टेक सिंपोजियम यहाँ पे हुआ है, कितना बड़ा एक फायदा हो सकता है जब आर्मी, इंडस्ट्री और एकेडमिया एक साथ में? देखिए, सबसे बड़ा फायदा ये है कि अभी तक ऐसे जो होते थे, नॉर्थ टेक सिंपोजियम जैसी जो चीज़ है वो यहाँ पहली बार हुई है जो जम्मू कश्मीर में हुई। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर को यहाँ पे एक इकोसिस्टम मिलने वाला है। ये इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे लोकल डेवलपमेंट कैसे हो सकता है उसके बारे में देखेंगे। जहाँ तक मिलिट्री का फायदा है, जो ट्रॉयका जैसे आपने सुना तो ओपनिंग एड्रेस में कि मिलिट्री, एकेडमिया और इंडस्ट्री तीनों एक साथ मिल बांट के यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कैसे हमने आगे बढ़ना है और टेक्नोलॉजी को कैसे हमने एक्सप्लॉयट करना है। क्योंकि आज आप देखेंगे मैन एंड मशीन का जो कॉम्बिनेशन है वो निहायत जरूरी है। जितना अच्छा कॉम्बिनेशन उतनी अच्छी काबिलियत।
सर जैसे आपने कहा कि मैन और मशीनरी का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। अभी हमने देखा है सबसे बड़ा एक जो चैलेंज है वो ड्रोन का चैलेंज है। आपको क्या लगता है कि यहाँ जो सिम्पोजियम में जो इनोवेशंस हैं, किस तरह की इनोवेशंस हैं जिससे आर्मी उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो एडवर्सरीज हैं उनको मुंहतोड़ जवाब दे सके? बिल्कुल सही है, क्योंकि ड्रोन एक ऐसा चैलेंज है, स्पेशली अगर आप देखें तो पाकिस्तान के साथ जो हमारी बॉर्डर है, चाहे वो जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, ये चैलेंज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसी चीज़ यहाँ पर जो काउंटर ड्रोन इक्विपमेंट आया हुआ है वो हमारे लिए देखना निहायत ज़रूरी है, और इसमें टेक्नोलॉजी है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इम्प्रूव होती जा रही है। तो यहाँ बैठ के हम यही सोच विचार करेंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी है जो हमारे काम आने वाली है और कौन सी टेक्नोलॉजी है जो हमारे आगे आने वाले दिनों में काम आने वाली है, जिसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट जरूरी है। जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात करेंगे तो कितना इम्पोर्टेंट है इस तरह के सेमिनार, क्योंकि आगे जो मॉडर्नाइजेशन, आगे जो चैलेंज है उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा एक अंतिम कदम है और उससे हमारे और भी कदम निकलने वाले हैं। तो ये जो है हमारी एक शुरुआत है। छोटे छोटे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोजेक्ट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन इसमें हमें क्या फायदा होगा, यहाँ पर चूंकि हम तीनों बैठे हुए हैं, यानी मिलिट्री, इंडस्ट्री और एकेडमिया, आप देखेंगे यहाँ पर हमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उसके बारे में सोच विचार का मौका मिलेगा। नॉर्थ टेक सिंपोजियम में मुख्य आकर्षणों में एक स्वचालित मल्टी टेरेन वाहन है। इस वाहन का इस्तेमाल एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर निगरानी में किया जा सकता है। मानव रहित वाहन के शीर्ष पर कैमरे लगे हैं जो विरोधियों की गतिविधियों की तस्वीरें कमांड कंट्रोल सेंटर को भेज सकते हैं। भारतीय सेना को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ इक्विपमेंट्स देने का काम जो है वो लगातार जारी है। जो हमारे नए इनोवेटर्स हैं वो नई नई मशीनें ईजाद करते हैं ताकि भारत की सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना बन जाए। आज यहाँ पर हम मौजूद हैं नॉर्थ टेक सिंपोजियम में, जहां नए नए इनोवेटर्स आए हैं, जो नई इनोवेशंस हुई हैं पिछले साल से उनको एग्जिबिट किया जा रहा है। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हमारे जो इनोवेटर्स हैं उन्होंने किस तरह की मशीनें बनाई हैं। देखिए यहाँ पर ये एक स्टॉल है, यहाँ आप देख सकते हैं कि वेपनरी भी है, लेकिन खास मैं आपको जो बताऊंगा इसमें ये जो व्हीकल है ये ऑल टेरेन व्हीकल है, यानी कोई भी तरह की कोई भी अगर किसी तरह की ज़मीन हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो ढलान हो, चाहे वो दलदल हो, वहाँ पर ये व्हीकल जा सकता है। इसके ऊपर आप देखें सामने लगे हुए हैं कैमराज। ये जो मशीन है जब ये ऑपरेट की जाएगी उसके बाद इसके जो कैमरे सामने लगे हुए हैं ये कैमरे पिक्चर्स लेते हैं और सीधे कमांड कंट्रोल सेंटर को भेज देते हैं। यानी जिस तरफ से ये जाता है, अगर एडवर्सरी की तरफ से किसी भी तरह की कोई भी नापाक हरकत की जाती है तो ये उस मोमेंट को कैप्चर करता है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप देखें कि किस तरह के जो, जैसे मैंने पहले बताया था कि ये किसी भी तरह से का जो भी जिस तरह की भी ज़मीन हो, चाहे वो पहाड़ हो, दलदल हो या कोई और तरह का रास्ता हो, वहाँ पर ये मशीन आसानी से चल सकती है। ये देखिए ये स्क्रीन पे जैसे ये डिस्प्ले अभी कर रहे हैं, ये देखें अगर स्मूथ सरफेस है वहाँ पर भी ये जा सकता है। अब जितनी भी स्पीड से आप इसको चलाना चाहिए, देखिए पथरीला रास्ता, यहाँ पैदल चलना भी मुश्किल है, लेकिन ये मशीन ऐसे डिवाइस की गई है, ऐसी उसका डिज़ाइन बनाया गया है, इसके टायर उस तरह के बनाए गए हैं कि ये इस तरह की ज़मीन पर भी आसानी से चल सकती है। ये व्हीकल जो सर्वेलेंस के काम आएगा, चाहे आप बॉर्डर हो, चाहे कंट्रोल लाइन हो। आप देखें पानी के अंदर भी ये मशीन चल सकती है। और ख़ास बात जो है, हमारे पास पहले से भी कुछ ऑल टेरेन व्हीकल्स मौजूद हैं जो आर्मी ऑपरेट करती है, लेकिन इस व्हीकल की एक ख़ास बात ये है कि ये बिना किसी आदमी के, बिना किसी फौजी जवान के भी चल सकती है। यानी ये ऑटोमेटिक मशीन है, अपने आप चलेगी और उसको चलाने की ज़रूरत नहीं है। यानी अगर आप इसको कोई सा भी टास्क देंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इसको देके आप इसको कोई भी टास्क देंगे कि आपको उस तरफ जाना है, वहाँ पर आपने टोह लेनी है, वहाँ देखना है कि किस तरह की एक्टिविटी है, और ये सारा वो काम करके दे देगी। और इस बारे में और कुछ जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जो इस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की टेक्नोलॉजी। सर, ऑल टेरेन व्हीकल्स पहले भी थे, ये वाला जो व्हीकल है इसको हमने देखा कि ये बिना किसी ये ड्राइवर के वो चलाया जा सकता। और क्या खासियत है इस व्हीकल की? ये अनमैन ग्राउंड व्हीकल टोटली इंडिजिनस है
एंड जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर और अभी गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं आत्मनिर्भर के ऊपर, पूरी इंटेलिजेंट व्हीकल है, टोटली डिजाइन डेवलप्ड इन हाउस, and it is like a force multiplier for our defense forces because it's a stealth vehicle which can operate for 4 hours in a total silent operations. plus ये शुरू में सर्वेलेंस करते हैं, जो पिक्चर इसके कैमरा से आती है वो आप बैक स्टेशन पे भेज सकते हैं विच इज टू द रेंज ऑफ 8 to 10 kilometers, एंड देन आवर इन्फेंट्री एंड देन आवर टैंक्स कैन मूव ऑन. ये जो व्हीकल है ये वर्क कोलैबोरेटिव मैनर में करती है मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज लाइक आई सेड इंटेलिजेंट व्हीकल है. 2-3 व्हीकल्स कैन मूव टुगेदर. इट कैन कैरी ए पेलोड ऑफ 350 kgs. हमारे पास एक दूसरा वेरिएंट है जिसमें 450 kgs. थर्ड वेरिएंट जो है वो ट्रैक्ड वर्जन है जो आप डेजर्ट, स्नो और हर टेरेन में इसको चला सकते हो. इसमें आप एक रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम भी फिट कर सकते हो. अगर आपने एनिमी को टारगेट करना है इट कैन ऑल्सो टेक ऑन फायरिंग. इसकी मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं. इट इज एन एम्फीबियस व्हीकल विच कैन मूव इनसाइड द वाटर ऑल्सो. तो इट इज वेरी गुड फॉर आवर सर्विसेज. ऑलरेडी ये व्हीकल डिफरेंट ट्रायल्स हो चुके हैं इसके एट डिफरेंट रेंज. हमने ट्रायल स्नो में किए हैं, डेजर्ट में किए हैं, इन्फेंट्री के साथ किए हैं एंड ऑल्सो विद आर्मर्ड. तो उनको इसकी काफ़ी वैल्यू एडिशन लग रही है. एंड नाउ दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर फर्दर एक्चुअल इंडक्शन इनटू द इंडियन आर्मी. तो आपने सुना कि आपने देखा भी कि ये जो व्हीकल है खास जो डिज़ाइन किया गया है इसके कितने फ़ायदे हैं. और जैसा कि इस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव बता रहे थे उनका साफ ये कहना है कि इसके ट्रायल भी हो चुके हैं और अब फॉर्मली इसको इंडियन आर्मी में इंडक्ट किया जाना है, शामिल किया जाना है ताकि इंडियन आर्मी इसके फ़ायदे उठा सके और एडवर्सरीज की तरफ से जिस तरह की नापाक साजिशें की जाती हैं उनको वक्त रहते ही ख़त्म किया जा सके. कैमरामैन आशू के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18 जम्मू. चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सांबा जिले से आपको खबर देंगे जहां डेंगू के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जिला अस्पताल सांबा में मरीजों के लिए डेंगू वार्ड तैयार किया है. जिला अस्पताल सांबा में भी डेंगू परीक्षण की सुविधा उपलब्ध होगी. सीएमओ सांबा डॉक्टर विधि ने न्यूज 18 को बताया कि जिले में अब तक डेंगू के करीब 55 मामले दर्ज किए जा चुके हैं. सभी मरीजों की हालत बेहतर है. लोगों की मांग है कि नगर निगम और पंचायत क्षेत्र में साफ सफाई सुनिश्चित कराई जाए. डेंगू के केस जो बढ़ रहे हैं पंचायतों में भी बढ़ रहे हैं, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से भी, और अब डीसी साहब से गुजारिश है कि जो फॉगिंग वगैरह करवा रहे हैं ये पंचायतों में भी होनी चाहिए और जो डेंगू के केस आ रहे हैं इसके अवेयरनेस के लिए कैंप वगैरह लगाने चाहिए और लोगों को भी अवेयर करना चाहिए. लोगों को काफ़ी वायरल हो रहा है, बुखार आ रहे हैं. अभी हॉस्पिटल में भी आपने देखा कि काफ़ी सारे जो केसेज हैं डेंगू के बढ़ रहे हैं. बात की जाए अगर सांबा की, तो मेरे खुद के घर के दोनों बच्चों को डेंगू हुआ है और वो हमने घर में ही उनको तो अपना क्वारंटाइन किया हुआ है. तो उनकी जो भी मेडिसिन है वो हम हॉस्पिटल के माध्यम से डॉक्टर की एडवाइस से उनको दे रहे हैं. बात की जाए अगर सांबा की, तो ये सांबा से अब बढ़कर गांव की तरफ फैलना शुरू हो गया और कोई इसमें दो राय नहीं है कि अगर इसके ऊपर अभी लगाम नहीं लगाया गया या इसके ऊपर विराम नहीं लगाया गया तो ये घातक सिद्ध होगा और ये एक महामारी की तरह फैल जाएगा. हमारे डेंगू केसेस आने स्टार्ट हो गए हैं और बढ़ना शुरू हो गए हैं. तो हमारे, जैसे आपने पूछा मुझसे कि क्या इंतज़ाम है, हमारे यहाँ पे पूरी तरह से हम लोग रेडी हैं डेंगू से फाइट करने के लिए. हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एलाइजा चेक करने के लिए लैब में सारे इंतज़ाम हैं. हमारे पास डेंगू वार्ड की सुविधा उपलब्ध है. हमारे जो भी ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है एक डेंगू के पेशेंट के द्वारा वो हमारे पास फुली अवेलेबल है. और ये खाली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं, ये ट्रीटमेंट जो है ये ऑल CHCs में इवन PHC लेवल पे अवेलेबल है. लेकिन जो टेस्टिंग की फैसिलिटी की जो है हमारी वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है. बट हमारे यहाँ पे अभी तक कोई भी ऐसा केस नहीं आया जिसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो. सभी कंट्रोल्ड पेशेंट्स थे हमारे और जो मतलब विद टाइम ठीक हो गए. मैक्सिमम पेशेंट्स हमारे इसमें से ठीक हो गए हैं. पटन में श्रीनगर बारामूला राष्ट्रीय राजमार्ग पर संदिग्ध आईईडी जैसी वस्तु मिली है. इसके बाद हाईवे पर यातायात रोक दिया गया है. बाद में सुरक्षा बलों के बम निरोधक दस्ते ने इसे नष्ट कर दिया और हाईवे पर यातायात को बहाल कर दिया गया है.
इस वक्त मैं हाईवे पे हूँ और यहाँ पे आईडी रखी गई थी और आप देख सकते हैं ये आईडी यहाँ पर ही रखी गई थी। जिस स्पॉट पे इसको ब्लास्ट किया गया अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्मी है, सीआरपीएफ है और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने हर चीज़ अपने साथ में ले ली है। और आप देख सकते हैं ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको ब्लास्ट किया गया है। और ये वो चीज़ें हैं जो यहाँ पे, एक मिनट मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा, ये आप देख सकते हैं कि ये मेटल डिटेक्टर्स हैं, यहाँ पे पता चल पाता है कि कहाँ पे आईडी है, कितनी दूर है, दूर से सायरन मिलती है इससे। और ये आप देख सकते हैं ये वो सैंपल्स हैं जो कलेक्ट किए गए हैं। ये बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड जो है इंडियन आर्मी का, उन्होंने ये चीज़ें कलेक्ट की हैं। ये आईडी यहाँ पे ऐसा लगता है कि इसी बॉक्स में रखी गई थी, बड़े बॉक्स में रखी गई थी और अब इसको कंट्रोल्ड ब्लास्ट के जरिए ब्लास्ट कर दिया गया। और ये अब यहाँ से आर्मी, सीआरपीएफ, एसएसबी और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस वापस जा रही है। एक बड़े हादसे को टाला गया है नेशनल हाईवे पे एक बड़े हाईवे पे जो बड़े हादसे को टाला गया। ये बीडीएस है यानी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, ये जम्मू कश्मीर पुलिस की बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है। बहुत ही कॉम्पिटेंट टीम्स हैं, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की हो या आर्मी की बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड हो। जो ही इनको पता चला कि यहाँ पे आईडी है, रोड ओपनिंग पार्टी ने आईडी डिटेक्ट की थी, उसके बाद बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड यहाँ पे पहुंची और इसको आप कंट्रोल ब्लास्ट के जरिए नाकारा कर दिया गया। आप हमें बताइए कि कितना टाइम लगा इस आईडी को ब्लास्ट करने में टोटल? लगभग आधा घंटा लगा इसको। तो ये मेटल डिटेक्टर्स ही डिटेक्ट करते हैं क्या? बिल्कुल मेटल डिटेक्टर्स के जरिए, और उसके बाद जांच के लिए जाएंगे ये सैंपल जो लिए गए, पता चल जाएगा इसमें कौन सा एक्सप्लोसिव है, कितने मकदार में है। तो अब पता चल पाएगा कि कितने मकदार में जो है ये एक्सप्लोसिव थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब रेस्टोर कर दिया गया है हाईवे को। चलिए आगे बढ़ेंगे और हिमाचल की खबरों की ओर रुख करेंगे, जहां आगामी लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस वोट मांगने आए तब जनता गोबर साथ रखे। गारंटी के मुताबिक कांग्रेस सरकार ने अभी तक गोबर की खरीद शुरू नहीं की है। ऐसे में लोगों को ये गोबर इकट्ठा करके रख लेना चाहिए। हिमाचल बीजेपी के महामंत्री त्रिलोक कपूर ने ये बातें हमीरपुर में कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गारंटियों का षड्यंत्र रचकर प्रदेश में सत्ता हथियाने का काम किया है। कांग्रेस के लोग यदि आपदा को लेकर बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं तो इसका जवाब भगवान भी नहीं दे सकता है। कांग्रेस की गारंटियों की डिलीवरी नहीं हो पाई है। भारतीय जनता पार्टी की जो हार हुई है वो कितनी हुई सब जानते हैं, 0.9। और अगर इन्होंने झूठी गारंटियों का अगर जाल नहीं बुना होता तो हमें पता था कि भारतीय जनता पार्टी 45 से आगे जाती। लेकिन हमारी हार नहीं हुई है, इन्होंने षड्यंत्र करके पार्टी को, हमारी को सत्ता से आने में रोका है। लेकिन हम इस बार कार्यकर्ता को इसलिए अभ्यास और प्रशिक्षण दे रहे हैं कि जनता फिर झूठी गारंटियों के इसमें ना आए। चलिए आगे बढ़ते हैं और मिशन इंद्रधनुष का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है, जो 16 सितंबर तक चलेगा। इस कार्यक्रम के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 साल तक के बच्चों का हेड काउंट सर्वे कराया जाना है। ये कार्य एएनएम, आशाकर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, हेल्पर और शहरी क्षेत्रों में एनजीओ के जरिए कराया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजन उप्पल ने बताया कि सर्वे करवाकर छूटे हुए बच्चों और आंशिक टीकाकरण वाले बच्चों की पहचान कर उनका पूर्ण टीकाकरण और गर्भवती महिलाओं का पूर्ण टीकाकरण करवाने पर जोर दिया जाएगा। और सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल के बाहर सड़क किनारे लगे वाहनों से कई बार जाम की स्थिति बन जाती है, जिससे अस्पताल में आ रहे मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही मामला क्षेत्रीय अस्पताल के बाहर सामने आया, जहां पर सड़क किनारे लगे वाहनों से वहां जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। स्थानीय लोगों और वाहन चालकों का कहना है कि प्रशासन को इस ओर अब ध्यान देने की आवश्यकता है। जाम से पब्लिक को बहुत परेशानी है और ये लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है। यहाँ साइन बोर्ड नहीं है, प्रशासन की तरफ से साइन बोर्ड हो कि लोग पार्क अपनी गाड़ी कहाँ करें कहाँ नहीं, लोग बीच में खड़ा कर देते हैं और पेशेंट्स को बहुत दिक्कत है। तो मेरी रिक्वेस्ट है प्रशासन से, पुलिस से कि यहाँ थोड़ा सा ये इसको व्यवस्था को स्टार्ट किया जाए। कितनी देर से जाम में फंसे? कम से कम 10-15 मिनट हो गए, कोई कुछ भी यहाँ पे कोई नहीं है, ना कोई सुन रहा है ना कोई कहने वाला है। जैसे कि यहाँ थोड़ी सी हॉस्पिटल के पास व्यवस्था की जाए जिससे पेशेंट्स को और लोगों को कोई परेशानी ना हो। उपमंडल नालागढ़ के बेला मंदिर गांव में एक कंपनी को सरकार द्वारा 150 बीघा जमीन लीज पर दी गई और वहां पर कंपनी
किसी केमिकल के निर्माण कार्य शुरू करने जा रही है, जिसका अभी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू भी नहीं हुआ है। लेकिन इसको लेकर ग्रामीणों में कंपनी में जहरीला केमिकल बनाने को लेकर रोष प्रदर्शन शुरू हो गया है। आपको ये बता दें कि चौथे दिन भी ग्रामीणों ने एकत्रित होकर कंपनी के गेट पर रोष प्रदर्शन करते हुए कंपनी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कंपनी को गांव में न लगाने की सरकार और प्रशासन से गुहार लगाई। ग्रामीणों का कहना है कि जहरीले केमिकल बनाने वाली कंपनी के कारण 10 किलोमीटर के दायरे में दर्जनों गांव पर इस फैक्ट्री का असर पड़ेगा और यहां पर लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि जैसे पंजाब के भटिंडा में केमिकल फैक्ट्री द्वारा वहां पर कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ गई है और एक भटिंडा से ट्रेन भी कैंसर के नाम से चल रही है, इसी तरह दर्जनों गांव में भी कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ जाएगी और लोग और भी अन्य गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाएंगे। ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन को चेतावनी देकर कहा है कि अगर जल्द इस कंपनी का निर्माण कार्य नहीं रुकवाया गया तो एकत्रित होकर उग्र आंदोलन करने को भी वो मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन की होगी। इस बारे में जब हमने कंपनी के प्रबंधक कुलभूषण से बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। इसमें सभी लोग इनको कन्विंस करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए, अगर टेक्निकल टीम इनकी इस प्लांट के जो एमडी हैं उनके पास है तो वो लोगों को बताएं और जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को जो है वो पब्लिक करें कि यहाँ पे क्या बनने जाएगा। जो एमडी साहब से मेरा डिस्कशन हुआ था सुबह के टाइम पे, तो बोले थे कि यहाँ पे जो आसपास के लोग हैं यहाँ पे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तो मतलब कि उनसे बात करना चाह रहे थे। तो एमडी साहब ने बोला कि 2:30 बजे का टाइम उन्होंने दिया हुआ है, तो 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक वो वेट करते रहे यहाँ पे। जब 4:30 बजे तो उनकी कोई अर्जेंट मीटिंग थी चंडीगढ़ में, तो 4:30 बजे यहाँ से निकल गए हैं। तो अगर भाई लोगों को अगर लगता है कि डॉक्टर साहब से हमें मीटिंग करनी है, एमडी साहब से करनी है, तो दोबारा हम शेड्यूल करके उसको कल की दोबारा मीटिंग मतलब अरेंज कर सकते हैं वहां पे। और इस तरह यहां पर लोगों ने प्रदर्शन किया है और अगर इस कंपनी का काम नहीं रोका गया तो उग्र आंदोलन करने को लोग यहां पर मजबूर होंगे। कोई टीपी नहीं है मेरे पास। ये मेन सिटी के अंदर है, अगर आप देखोगे ना, अगर किसी ने सेम प्लांट है। हाँ, सेम प्लांट है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नए प्लांट बंद करो। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।